not only for the Java, it is applicable for C++, any object oriented programming like as a C Sharp, VB.NET, or any object oriented programming language. Relationship in programming language. May there are some typos, so ignore it please. Okay. So first we have is a relationship, meaning we will discuss. It is also called inheritance. And second one is has a relationship. It is called association. I am making simple difference between both. In the single line of statement, I am define the is a relationship. One class, one class share its information. One class share its information to its child, its dependent class. Okay, one way relationship. One way relationship. Okay, so what is a relationship of meaning? One class share its information. We can say properties to its dependent class, and it is also called the one way relationship. So what is the meaning of the one way relationship? It is a simple term. Suppose you have a class that is called a parent. Basically we will parent, and another class is a child class. Let's see, all the properties of parent will be shared to the child, but child's property will not share to the parent. That's why it is called one way relationship. Means parent can share its all the property to the child, but child will not share any property with the parents. So this kind of relationship called this types of relationship called one way relationship is a relationship inheritance. In this format, which class shares its property to another class, that class called a parent, and which class uses shared properties, that class called child class. This is a parent child. Parent also called base class. This is a similar name, huh? This is a similar naming. So parent also called base. In the technically we can't say parent and child. This is for the simple term to understand what is a parent and what is child. But we technically for the base parent class we called base, and another one we called child class we called derived. This is the technical uh, keywords which we use. This is the terminology. So what is the meaning of the parent? Which class has a properties and that particular class sharing all the properties to the another class, that class we called child class. Which sharing the value, that is called parent, which is using the values, that is called child. Sharing, who class sharing, that is a parent, who is using the shared value, that is called the child. Any doubt till now here anyone has? सिद्धांत मला सांग, पॅरेंट क्लास काय असतो प्लीज लेट मी नो, आणि चाइल्ड क्लास काय आहे? हा सिद्धांत बोल. हा हा, आवाज येतो काहीतरी पण तू बोलत नाहीयेस. Hello, sir. हा बोल.
पॅरेंट क्लास म्हणजे आपलं मेन क्लास. मेन तसं नाही सांगायचं, जो क्लास डेटा शेअर करतो, जो क्लास डेटा शेअर करतो तो क्लास असतो पॅरेंट क्लास, आणि जो डेटा यूज करतो त्या शेअर केलेल्या क्लासचा, त्या क्लासला चाइल्ड असं म्हणतात किंवा डिराइव्हड असं म्हटलं जातं. So guys, I'll give an example. You have to identify that class, which class is a parent and which class is a child, or we can say which is the base or which is the derived. So now I am sharing my pen. Immediately I am going to ask here a question. I am drawing a design for to understand you. We have a class. Are you able to see my pen screen, guys? Yes. Okay, great. Right away we have a called person class. Okay, and we have a student class. So this class, this student class connected to person. Okay, this class connected to person, and students class will use all the property of person. So please let me know, please let me know which one is the parent and which one is a child. Person is the base The class and student parent class. Don't go on the arrow. Don't go on the arrow. What I am statement saying that once again I am sharing with you. I'll share with the details. Okay, I am doing like that. Okay, don't go. Suppose I have person class have just a moment. First name, last name, and student has only subject, only as subject, and student wants to access all the properties. Student want to access all the properties. So here is a arrow has a different work, means there is a ulta work it's going on there. Means if student class is accessing, if student class accessing value of the parent, then we have to mention like this. We do connectivity like this. So that arrow means what exactly? What arrow is saying that student class accessing all the value of the person. So now let me know here which one is the base class and which one is the parent. One by one I'll ask you. Okay, Riddhi, what do you think? Which one is a base or which one is a derived, or which one is a parent or which one is a child? person is the parent and student is child. Okay, great. Suyog, So student what student means? parent class. Okay. Mrunal? Person is base class and student is derived class. Okay. Siddhant? Sir, student parent class and person child class. Okay. Vaishnavi? सर पर्सन बेस आहे आणि सब्जेक्ट डिराइव्ड आहे. Okay, correct. Good. Okay, great. तर सुयोग पर्सन जो आहे तो पॅरेंट आहे. का पॅरेंट आहे त्याचं कारण असं आहे की आपली पॅरेंटची डेफिनेशन जी आहे, जो क्लास डेटा शेअर करतो, आता या केसमध्ये डेटा कोण शेअर करत आहे? सब्जेक्ट पर्सन वापरत आहे या स्टुडंटचे जे काही फील्ड्स आहेत. ओके, इकडे बघ की हा जो सब्जेक्ट आहे हा पर्सन यूज नाही करत आहे, पर्सन नाही यूज करत आहे. पर्सनच्या ज्या व्हॅल्यू आहेत ना, त्या व्हॅल्यू स्टुडंट ऍक्सेस करत आहे. हा एरोवर कन्फ्युज नको होस. जर का मी हा एरो असा काढला याचा अर्थ असा नाही, कारण की याच्यामध्ये थोडस वेगळं दाखवलं जातं. तर मी जर का तुला हा एरो असा उलटा जर केला तर तुला काय वाटेल आता मला सांग.
तुला जसं एरोचं समजायचं तसं समज. आय विल यूज द स्ट्रेट. आता वाटतं की पर्सन सब्जेक्ट यूज करतोय. हा, पण रेग्युलर टर्म मध्ये हे असं बरोबर आहे, पण एरोच्या बाबतीत उलट डिफाईन केलं जातं रिलेशनशिप मध्ये. एरोवरून कन्फ्युज होऊ नका. बरोबर, याच्यातनी उलट येतं एरोच्या वेळेतनी. रिलेशनशिप मध्ये असं दाखवण्यात येतं, रिलेशनशिप मध्ये असं दाखवण्यात येतं की दिस स्टुडंट असं डिफाईन केलं जातं की स्टुडंट क्लास जो आहे तो पर्सनच्या सगळ्या व्हॅल्यू ऍक्सेस करणार आहे. स्टुडंट क्लास पर्सनच्या व्हॅल्यू ऍक्सेस करणार आहे, पर्सनच्या, आणि पर्सनने शेअर केलेल्या व्हॅल्यू तो ऍक्सेस करते, असं होतं याचा अर्थ. ठीक आहे, तर इथे कन्फ्युज नका हो, कारण की रिअल टाइम मध्ये तुम्हाला अशा डायग्राम मिळणार आहेत. जेव्हा तुम्ही काम कराल तेव्हा तुम्हाला असं डिनोट करायचं आहे. ठीक आहे, तर मी तुम्हाला डेफिनेशन रिपीट करा बरं एकदा. डेफिनेशन रिपीट करतो. विच क्लास शेअर्स प्रॉपर्टीज to its derived or child class, that is called parent or base. ओके, आणि जी आणि क्लास शेअर नाही करत ती चाइल्ड क्लास ना. विच मी ते पण देतो. विच क्लास uses parents base class properties, that class called derived slash child. सो सिद्धांत, आता हे डेफिनेशन करेक्ट आहे तुम्हाला? एरोचं काहीही घेणं देणं नाहीये तुम्हाला इथे. एरोवर लक्षच द्यायचं नाहीये. तुमचा यूज केस काय आहे हे लक्षात ठेवा. ठीक आहे, आता फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला एक छोटीशी गोष्ट दाखवतो इथे. मी हे नवीन याच्यात नाही टाकतो. ठीक आहे, नवीन याच्यामध्ये. आता मला सांगा, इथे एक क्लास तयार केला मी कार, आणि इथे क्लास तयार केला मी इंजिन. ओके, इंजिन. आता मला सांगा, इंजिन कार वापरणार आहे की कार इंजिन वापरेल? कार. कार इंजिन. येस. तर या टर्म मध्ये पॅरेंट क्लास कोण आहे आणि चाइल्ड क्लास कोण आहे? विच इज द पॅरेंट. ओ अगेन इंजिन कन्फ्युजन? पॅरेंट. Confusion? No confusion. Car is parent and engine is child class. Engine is parent and No, car is. yes. One by one, Engine is parent. one by one. Mrunal, engine is parent or child? Yes. Engine is parent and Ye- car is child. Yes. Yes. बरं सुयोग, इथे यस करेक्ट. रिद्धि, यू आर ऑल्सो करेक्ट. इंजन जो है ये पेरेंट ही है, क्योंकि इंजन का यूज कौन कर रहा है? सुयोग, इंजिनचा वापर कोण करत आहे? कार. वापर करणारा कोण आहे? चाइल्ड. जो वापर ओके, करतो, म्हणजे टोटली ऑपोजिट. हा म्हणजे जो यूज करतो, चाइल्ड जो आहे तो यूज करतोय. याचे जे काही शेअर प्रॉपर्टी आहे तो यूज करतोय, म्हणून यूज करणारा जो आहे तो काय असतो? तो असतो पॅरेंट. पॅरेंटच असतो. ठीक आहे, यूज करणारा चाइल्ड असतो, आणि जो शेअर करतो, शेअर करणारा कोण आहे? पॅरेंट. आणि यूज Parent. करणारा कोण आहे? चाइल्ड आहे. लक्षात Child. ठेवा. आता अजून एक एक्झाम्पल देतो, डोंट बी कन्फ्युज या. I am giving little bit tough, but I believe
Many people will give answer. Laptop. RAM. हा सुयोग आता सांग सर रॅम काय रॅम काय. पॅरेंट सर रॅम पॅरेंट. ओके मृणाली. RAM parent class है. Yes. वैष्णवी. सर रॅम पॅरेंट आहे. Yes, correct. Perfectly fine, guys. You are able to identify which one is a parent and which one is a child. So that is a perfect. This is our first step which we have completed. Now यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये इनहेरिटेंस जो होता है ये वन वे रिलेशनशिप देता है. यानी क्या कि रैम जो है, मतलब मैंने जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है गाइस. डोंट बी उतना मत ये करना कि रैम जो है, रैम की सारी प्रॉपर्टीज लैपटॉप यूज कर सकता है बट लैपटॉप की कोई भी प्रॉपर्टीज है ना रैम नहीं यूज करेगा. ये एक ऐसा वन वे रिलेशनशिप होता है इनहेरिटेंस में, यानी इज ए रिलेशनशिप में. ठीक है, तो वो केस में जैसे कि और एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूँ. लेट्स सी. फादर एंड सन. फादर की जो भी प्रॉपर्टीज होती है वो सन को बाय डिफॉल्ट मिल जाती है, बट सन की जो भी प्रॉपर्टीज है वो फादर को रिलेट नहीं करेगी, मतलब वापस नहीं दे सकता है. फादर सन की कोई भी प्रॉपर्टीज को यूज नहीं कर सकता. ये ऐसा वन वे रिलेशनशिप होता है इसमें. तो ये जो है इसे कहते हैं हम लोग इनहेरिटेंस. इसे कहते हैं हम लोग इनहेरिटेंस. ओके, तो हमारा जो पहला जो है टाइप्स जो हमने कवर किया है वो है रिलेशनशिप में इनहेरिटेंस कि पेरेंट क्लास की सारी प्रॉपर्टीज और फील्ड जो है ना बेस क्लास जो उसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो डिराइव्ड क्लास एक्सेस करेगा. तो गाइस वी विल नॉट से पेरेंट, हम लोग यहाँ पे बेस क्लास एंड डिराइव्ड क्लास का यूज करेंगे. तो बेस क्लास में जितनी भी प्रॉपर्टीज होगी वो सारी प्रॉपर्टीज डिराइव्ड क्लास एक्सेस करेगा, लेकिन डिराइव्ड क्लास की कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो बेस क्लास एक्सेस नहीं कर पाएगा. तो ये हमारा सिंपल टर्म है, ये इनहेरिटेंस है. ओके, सो इनहेरिटेंस में 5 टाइप्स आते हैं. बेस क्या है, डिराइव्ड क्या है, ये आप लोगों को समझ में आया. इसमें ना 5 टाइप्स है. सिंपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस and hierarchy, hybrid. ठीक है, ये 5 इनहेरिटेंस है जो हम लोग वन बाय वन एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं. नाउ टर्न टू हैज अ रिलेशनशिप के बारे में हम लोग आज जानेंगे. हैज अ रिलेशनशिप में, हैज अ रिलेशनशिप में दोनों हो सकता है. यानी क्या कि एक क्लास दूसरे क्लास को डेटा देगा भी और दूसरे क्लास से डेटा लेगा भी, मतलब दोनों एक दूसरे का टू वे रिलेशनशिप है इसमें. मतलब दोनों एक दूसरे का डेटा जो है एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं. अभी फॉर एग्जांपल की बात अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे देखो ये कस्टमर है, जैसे कि आप शॉपिंग तो करते ही होंगे, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, और एड्रेस, ये 2 है. आपको ये पता है कि कस्टमर का एड्रेस क्या है, कस्टमर को चाहिए कि उसका एड्रेस क्या है, और हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि इस एड्रेस में कितने कस्टमर है.
मतलब दोनों का डेटा एक दूसरे के साथ कंबाइन होता है, मतलब एक दूसरे को यूज करना होता है, हम लोग दोनों का डेटा एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, तो उस रिलेशनशिप को कहते हैं एसोसिएशन। बोथ आर एसोसिएटेड टू ईच अदर। और इसमें भी दो टाइप्स है। इसमें भी दो टाइप्स है। पहला है, वन बाय वन जाएंगे हम लोग, कंपोजिशन, एंड सेकंड है एग्रीगेशन। बस इतना आपने सीख लिया, 100% रिलेशनशिप आपने सीख लिया, और आप अच्छे तरीके से क्लास डिजाइन कर सकते हैं, आप अच्छा सॉल्यूशन बना सकते हैं। When you want to require a single class that all the value holds common values and share to all its child classes या derived classes को चाहिए, तो उस क्लास केस में हम लोग इनहेरिटेंस यूज करेंगे। देखो, इनहेरिटेंस कब यूज करना है आप लोगों को, जब आपको लगता है कि एक जो बेस क्लास बनाएंगे और वही बेस क्लास हम सब जगह पे इस्तेमाल करेंगे, ऐसा आपको लगता है। और वन वे, जैसे कि कोई भी डिराइव्ड क्लास की वैल्यू या प्रॉपर्टीज हम लोग एक्सेसिबल नहीं करेंगे बेस क्लास में, तो हम लोग इनहेरिटेंस के लिए जाते हैं। अभी आपको लगता है कि नहीं, दोनों क्लासेस एक दूसरे के साथ प्रॉपर्टीज शेयर करने चाहिए, तो उस केस में आपको यूज करना पड़ेगा सेकंड रिलेशनशिप, दैट इज कॉल्ड हैजर रिलेशनशिप। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी डेफिनेशन भी लिख देते हैं। टू वे रिलेशनशिप, both classes can access each others property। हाँ, तो अभी मुझे बताइए कि सबसे पहले दोनों में जो डिफरेंस है, तनु, इज ए रिलेशनशिप और हैज ए रिलेशनशिप में क्या डिफरेंस आपको समझ में आया अभी तक? Sir, is a relationship is a one way and has a relationship is a two way. यस, करेक्ट, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, कोई बात नाही। वैष्णवी, समजलं काही न समजायला काही असं वेगळं आहे जे नाही. कन्फ्युजन? सिद्धांत, काही कन्फ्युजन? No, sir. ओके ओके, सुयोग, अजून काही कन्फ्युजन आहे तुला? No, sir, no. ओके, रिद्धी, Sir, हा कोणीतरी but how we will identify that five types of inheritance? ओके, वन बाय वन वी विल गो। आता अजून आपण केलं नाहीये, आता आपण करणार आहोत वन बाय वन, वी विल गो थ्रू वन बाय वन विथ इट्स डेफिनेशन एंड इट्स प्रॉब्लेम स्टेटमेंट एंड हाउ वी कैन सॉल्व इट। ठीक आहे, सो अगोदर दोन्ही समजलं असेल सगळ्यांना, तर आता मी इजर रिलेशनशिप मध्ये जे टाइप्स आहेत 5, त्याच्यापैकी सिंपल आता आपण स्टार्ट करूया। ठीक आहे, ओके, गुड। रिद्धी, any doubt you have till now, both is a relationship and as a relationship? No, sir. Okay, all clear? Yes. Yeah, because of you are the student who is going to real time development, means you are going to for the Spring Boot sessions, and Spring Boot sessions we are developing real time live projects. So in there we are starting with only this. So this is the very important concept. Okay. So now we will define what is, first of all, simple inheritance. Simple inheritance means what exactly? A base class, and a derived class. इसके अंदर सिर्फ एक बेस क्लास होता है और एक ही डिराइव्ड क्लास होता है। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप होता है
उसे कहते हैं सिंपल इनहेरिटेंस. ओनली वन बेस क्लास एंड ओनली वन डिराइव्ड क्लास. दिस इज कॉल्ड सिंपल इनहेरिटेंस. एनी डाउट कि किसी को कोई डाउट है कि सिंपल इनहेरिटेंस किसे कहते हैं? सिंपल इनहेरिटेंस में सिर्फ एक बेस क्लास होगा और एक ही डिराइव्ड होगा, यानी कि एक पेरेंट और एक ही चाइल्ड. उसमें ये रिलेशनशिप में दूसरा क्लास नहीं होगा. ठीक है, दो ही क्लास होंगे यहाँ पे. अ, इसमें कोई किसी को डाउट है? हम लोग इसे प्रैक्टिकली देखेंगे, पहले समझेंगे. साइलेंस मीन्स नो डाउट. तो चलो इसे प्रैक्टिकली करें एक बार, सिंपल इनहेरिटेंस को. लेट्स सी. तो मैं इंटेलिजे को स्टार्ट कर देता हूँ. मैंने इंटेलिजे स्टार्ट किया है. हाँ, मीनवाइल हम लोग एक डिजाइन करेंगे जो पेंट पे मैं दिखाऊंगा. विच क्लास शुड वी यूज for example. Simply we are using here person and employee, or we can use one more things that is very important. Theory and student. Student has a roll number, and student has full name. That's it. Theory has guys, let me know your subjects. रिद्धि आपके सब्जेक्ट बताओ, तीन कोई भी शॉर्ट फॉर्म बता देना. HMI सर. एच MI. एम आई. ओके, नेक्स्ट. डेटा स्ट्रक्चर. ओके, ऐसे बता दो, सबको पता चलेगा इसे. डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम सर. ये अलग टॉपिक नहीं है. डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम एक साथ ही है. कंप्यूटर ग्राफिक्स. पीजी कंप्यूटर ग्राफिक्स, कंप्यूटर नेटवर्क. कंप्यूटर ओके, गुड. तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि स्टूडेंट की जो प्रॉपर्टीज है हम लोग थियरी में यूज करेंगे, और वी विल कैलकुलेट इस मार्क्स एंड वी विल प्रिंट. इसमें हम लोग टोटल मार्क्स निकालेंगे डेटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड नेटवर्क के, जस्ट फॉर द एडिशन. और हम लोग ये रोल नंबर जो है और फुल नेम है ये थियरी क्लास में यूज करेंगे. दैट्स इट. क्या करेंगे हम लोग, ये रोल नंबर और फुल नेम जो है ये हम लोग इनहेरिट करेंगे यहाँ पे. कहाँ पे? थ्योरी क्लास में. क्योंकि थ्योरी जो है ये बनेगा आपका डिराइव्ड क्लास, बिकॉज वी आर यूजिंग वैल्यूज ऑफ स्टूडेंट क्लास. ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लेते हैं बेस क्लास. ओके, ग्रेट. सो अगर हमने ऐसा जबरदस्ती बना दिया स्टूडेंट को बेस क्लास और इसे डिराइव्ड क्लास, सो नो वरीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. और हम लोग इसका एग्जांपल भी देखेंगे. लेकिन अगर टेक्निकली देखेंगे तो थ्योरी एक कॉमन होता है और एवरी स्टूडेंट विल बी डिफरेंट वन. सो
टेक्निकली और बेस क्लास थ्योरी होना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट के नाम तो हमें कॉमन रखने हैं और स्टूडेंट की जो वैल्यूज है वो मोस्ट ऑफ द करके हम लोग चेंज करते जाएंगे, ऐसा कर सकते हैं। बट ये सिंपल क्लास, सिंपल एग्जांपल है, सिंपल इनहेरिटेंस है, तो आपको कोई भी क्लास बेस बनाना है और कोई भी एक क्लास जो है वो डिराइव्ड ही बनाना है। तो पहले हम लोग सिंपल स्टूडेंट की डिटेल्स थ्योरी में लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि कैसे दिखेगा, कैसे वर्क होगा, क्या अच्छा होगा हमारे लिए। मैं अभी आपको एक शेयर कर लेता हूँ स्क्रीन इसका। यहाँ पे सबसे पहले एक पैकेज बना देते हैं। सिंपल इनहेरिटेंस। और एक क्लास बना लेते हैं स्टूडेंट। दूसरा एक क्लास बनाएंगे स्टोरी का। इसे प्राइवेट बना दिया है। अभी अगर इसका मुझे ऑब्जेक्ट अगर बनाना है, तो गाइज आपको पता है इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए और ये फील्ड को एक्सेस करने के लिए आपको कंपलसरी गेटर एंड सेटर लेना जरूरी है। मैं एक कंस्ट्रक्टर भी ले लेता हूँ। ये जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है एंड ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी है। ठीक है, और इसकी गेटर सेटर भी एक्सेसिबल करने के लिए इसकी गेटर सेटर भी। चलो, ये भी बना दिया अभी मैंने। इसको सेव करते हैं। हाँ, एरर है। एरर तो नहीं होना चाहिए। ओके, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं था। ठीक है, और थ्योरी में सिंपल है यहाँ पे, प्राइवेट इंटीजर कंप्यूटर नेटवर्क, प्राइवेट इंटीजर कंप्यूटर ग्राफिक, प्राइवेट इंटीजर डेटा स्ट्रक्चर। चलो, और यहाँ पे मैं एक सिंपल मेथड बना लेता हूँ। पब्लिक वॉइड कैलकुलेट कैलकुलेट प्रिंट रिजल्ट कर देता हूँ, प्रिंट रिजल्ट। ठीक है, प्रिंट रिजल्ट कर देता हूँ। चलो ठीक है, प्रिंट रिजल्ट कर देते हैं। क्या क्या रिजल्ट प्रिंट करना है, तो हमें रिजल्ट में प्रिंट करना है ये तीनों सब्जेक्ट की टोटल मार्क्स। तो मैं यहाँ पे इंटीजर, सबसे पहले इंटीजर टोटल मार्क्स ले लेते हैं वन बाय वन। इंटीजर टोटल और कंप्यूटर नेटवर्क ग्राफिक
कंप्यूटर नेटवर्क्स प्लस डेटा स्ट्रक्चर, इनकी मार्क्स करेंगे और प्रिंट कर देते हैं। सिंपल। हाँ, सबसे पहले टोटल मार्क्स और इसे दे देते हैं। ठीक है, चलेगा। चलो ये देखो, ये मैंने यहाँ पे प्रिंट रिजल्ट में किया है एक सिंपल, ये तीनों का टोटल बना दिया है मैंने और प्रिंट भी कर दिया है। अभी यहाँ पे हम लोग मेन मेथड बनाएंगे, बट हमें ये जो वेरिएबल्स है इनको भी डेटा हमें सेट करना है। तो हमें ये डेटा जो है यहाँ पे डेटा सेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। सबसे पहले 0 वाला बनाएंगे और दूसरा वाला जो है हम बनाएंगे ये वाला पैरामीटराइज वाला, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, बना दिया। अभी सबसे पहले हम डिटेल लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। थ्योरी का हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, थ्योरी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। t1 इक्वल टू न्यू और थ्योरी। मैं मार्क्स डालता हूँ, पहले 60 है, दूसरे में लेट्स सी 65 है, तीसरे में लेट्स सी 90 है। ठीक है, ओके। और ये जो मेथड है ना प्रिंट रिजल्ट, t1 डॉट प्रिंट रिजल्ट, इतना कर देता हूँ। तो रिद्धि, अभी ये जो प्रिंट रिजल्ट होगा तो इसका टोटल मार्क्स कितने होंगे, क्या आउटपुट आना चाहिए, ये कैलकुलेट करेंगे तो 60 plus 65 plus 190. हाँ, तो कितना होना चाहिए। मैं थोड़ा मैथ सिंपल कर देता हूँ गाइस, आप लोगों को तो m1 m2 है, मतलब आई हैव आल्सो फेस इट। तो ये क्या चीज है, एडिशन। आई विल डू इट देन, स्टिल टुडे संडे सो आई एम मेकिंग इट। सो नाउ हाउ विल 200. 200. 200, okay, cool, check it. ओके ग्रेट। मैं और एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ फॉर द थ्योरी पर्पस। ऑब्जेक्ट तो हमें फ्री में मिलते हैं, मतलब ऑफर के साथ। सो आई एम मेकिंग हियर 10 कॉमा 10 कॉमा 30। सो नाउ ये t2 डॉट जो प्रिंट रिजल्ट है इसे कॉल कर देते। तो अभी इसका जो आंसर होगा सेकंड वाला, इसका क्या आंसर होना चाहिए। 50. ओके ग्रेट। फर्स्ट का 200 और सेकंड का 50, चेक करते हैं। ओके कूल। तनु, टिल नाउ एनी यू हैव एनी डाउट, कुछ कुछ कंफ्यूजन है। मृणाल काही डाउट आहे, No, sir. एनी कंफ्यूजन। No, sir. ओके ओके। सो गाइज, मैंने यहाँ तक ना कोई इनहेरिटेंस नहीं किया, सिर्फ क्या किया, ये आपका जो थ्योरी वाला है ना वही किया, अभी इनहेरिटेंस किया नहीं। इनहेरिटेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो इनहेरिटेंस हम दो कीवर्ड से कर सकते हैं। वी हैव टू कीवर्ड्स टू इनहेरिट अनदर थिंग्स। ठीक है, पहला है एक्सटेंड्स एंड दूसरा है इम्प्लीमेंट्स। ये दो कीवर्ड से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये दो जो कीवर्ड है इससे हम लोग इनहेरिट कर सकते हैं। हाँ, अब पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि एक्सटेंड्स कब यूज करना है और इम्प्लीमेंट्स कब यूज करना है। ठीक है, एक्सटेंड्स, when should we use extends and when should we use implements। तो इसका सिंपल सा आंसर बहुत सिंपल है, इसका बहुत सिंपल है। जब सेम सेम इंस्टेंस हो या सेम एंटिटी होंगे, सेम टाइप ऑफ एंटिटी,
सेम टाइप ऑफ एंटिटी का मतलब क्या है? क्या होता है सेम टाइप ऑफ एंटिटी का मतलब? कि अगर एक क्लास दूसरे क्लास के साथ कनेक्ट करना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे? एक्सटेंड्स यूज करेंगे। और एक इंटरफेस है, ओके, और दूसरा भी इंटरफेस है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? एक्सटेंड्स यूज करेंगे। ठीक है। ओके, कूल, ग्रेट। नाउ इंप्लीमेंट्स कब यूज करना है आपको? कि एक क्लास है और दूसरा इंटरफेस है, या अपोजिट, पहला इंटरफेस है और दूसरा क्लास है, तो इस केस में हमें क्या यूज करना है? इंप्लीमेंट्स। इफ देर आर सिमिलर वन, तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे? अगर सेम सेम है, पहला क्लास भी क्लास ही है और दूसरा भी क्लास है, तो हम लोग वहां पे क्या यूज करेंगे? एक्सटेंड्स। extends. अगर इंटरफेस इंटरफेस है, दो इंटरफेस को कनेक्ट करना है तो एक्सटेंड्स। लेकिन एक क्लास है दूसरा इंटरफेस है, देन वी हैव टू यूज इंप्लीमेंट्स। शायद ये तनु ने क्वेश्चन किया था, आई गेस, या मृणाल ने, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन किसी ने किया था ये क्वेश्चन, करेक्ट? Yes. ओके, तो नाउ Sir, हमारे what पास, is interface? Means difference क्या है class interface? हाँ हाँ, वो हम देखेंगे लास्ट लास्ट सेशन में। हमने देखो एक इंटरफेस बनाया था, वी हैव क्रिएटेड वन इंटरफेस। तो दोनों में, हाँ, ये मैं बताता हूँ एक सिंपल टर्म में। अभी हम लोग ज्यादा इंटरफेस के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन सिंपल टर्म में मैं बताना चाहूंगा कि इंटरफेस में ना सिर्फ अब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है, मतलब डिक्लेयर करते हैं हम लोग मेथड को, कोई भी डेफिनेशन या बॉडी नहीं रखते। उसका पर्पस क्या है वो आगे हम लोग देखेंगे। जैसे कि डिक्लेरेशन का मतलब बस हम लोग इंटरफेस में ऐसे ही कर सकते हैं, जैसे पब्लिक वॉइड ऐड एडिशन, ऐसे बस। इसके अंदर हमें कोई लॉजिक नहीं लिख सकते। तो दिस काइंड ऑफ मेथड अब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है ये, यानी कि सिर्फ डिक्लेरेशन करते हैं इंटरफेस में, कोई लिखते नहीं है ऐसा कोड, कुछ भी नहीं करते हम लोग ऐसा। ओके, तो वो आगे हम लोग अब्स्ट्रैक्शन, जैसे ही रिलेशनशिप खत्म होगा अब्स्ट्रैक्शन चालू होगा, तो हम लोग इंटरफेस में ज्यादा कवर अप करेंगे, वो ज्यादा डीप में जाएंगे हम उसमें। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है इंटरफेस सिक्योरिटी के लिए और इंडिपेंडेंट बनाने के लिए प्रोग्राम को, तो वो आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको इतना समझ में आया है कि एक्सटेंड्स कब यूज करना है और इम्प्लीमेंट्स कब यूज करना है गाइस? Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes. हाँ, ओके। अभी हमें क्या करना है? हमें ये जो स्टूडेंट क्लास थ्योरी में हम लोग इम्प्लीमेंट यहाँ पे लेना है, मुझे इसे कनेक्ट करना है, इनहेरिट करना है। तो ये क्या है? ये आपका स्टूडेंट भी एक क्लास है और थ्योरी भी एक क्लास है। तो नाउ मुझे इनहेरिटेंस करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा? एक्सटेंड्स स्टूडेंट, बिकॉज थ्योरी ऑल्सो क्लास एंड स्टूडेंट ऑल्सो क्लास। ओके, गुड गाइस। और ऐसे करते हुए आपने क्या किया? जैसे ही आपने ऐसा किया, एक्सटेंड स्टूडेंट किया, वैसे वैसे ही आप यहाँ पे ये जो प्रिंट है यहाँ पे, नाउ यहाँ पे आप स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन प्रिंट कर सकते हो। एक्सटेंड करने के बाद ही मैं दिखा देता हूँ, स्टूडेंट इन्फो, स्टूडेंट इन्फो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। या तो फिर आपको अगर यहाँ पे नहीं प्रिंट करना है, आपको लगता है कि जस्ट सिंपली मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूं, तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो ऐसे। इन्फो, ये ज्यादा सिंपल रहेगा आप लोगों के लिए। t1 डॉट गेट फुल नेम। देखो ये जो फुल नेम है ये किसका है? ये है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के, t1 डॉट गेट रोल नंबर। ओके, ग्रेट।
ओके चलो आप मुझे बताओ कि आप लोगों ने T1 के लिए, ये T1 के लिए कंप्यूटर नेटवर्क के लिए कितनी वैल्यू असाइन की है मृदुल? T1 ऑब्जेक्ट के लिए आपने कंप्यूटर नेटवर्क के लिए कितनी वैल्यू असाइन की है मृदुल? ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो Yes, 50. 50। कंप्यूटर ग्राफिक्स के लिए 50. डेटा स्ट्रक्चर ऑल्सो 100. 100। ओके ग्रेट गुड। बट तनु, फुल नेम आपको क्या दिखाई देगा एंड रोल नंबर आपने कहाँ पे असाइन किया है? आपने सेट किया है कहीं से? स्टूडेंट क्लास हाँ स्टूडेंट क्लास में है, लेकिन स्टूडेंट क्लास में आपने कहीं पे क्या नाम दिया? मृदुल दिया, सागर दिया, सुयोग दिया, कहीं से भरा है क्या वो ऑब्जेक्ट में आपने? नो, ओ गॉड, नहीं भरा है आपने। तो ये एक पॉइंट है आपका अभी। अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन प्रिंट करने जाओगे, अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन प्रिंट करने जाओगे तो क्या होगा? स्टूडेंट फॉर नल नल मार्क्स 200। अभी एक ही स्टूडेंट के हम लोग डिस्कस करते हैं, दूसरा नहीं, वन बाय वन, ठीक है? देखो स्टूडेंट की इन्फो नल है, अभी आपका ये जो क्लास है स्टूडेंट क्लास, ये आपका बेस क्लास है और बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर इसमें है। लेकिन अब आप बेस क्लास में तो आपने कुछ वैल्यू भरी ही नहीं है, बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर में कुछ भी वैल्यू भरी ही नहीं, और ना ही ये वाला आपका क्लास है जिसमें आपने कुछ वैल्यू भर सकते हैं, नहीं भरी आपने। तो गाइस सिंपल है, जैसे आपने यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर ग्राफिक्स और डेटा स्ट्रक्चर ले लिया है ना, वैसे ही आपको यहाँ पे सेम रोल नंबर जैसे कि कहीं पे भी ले सकते हैं, आगे पीछे कहीं पे भी, रोल नंबर कॉमा स्ट्रिंग फुल नेम, ऐसे ही वैल्यू लेनी है यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन ये कि ये जो वैल्यू है, ये जो दो वैल्यू है आपकी, ये रोल नंबर और फुल नेम ये कहाँ पे है? ये आपके स्टूडेंट क्लास में है, जो कि आपका बेस क्लास है। तो आप क्या करोगे? बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है आपको। बेस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है ना, ये वाला, इसमें आपको वैल्यू भरनी है नाउ हियर। बट आपको अगर वैसे वैल्यू भरनी है डिराइव्ड क्लास से, तो आप सिर्फ सुपर लिखो। Super is the keyword which is used to call base class constructor. Super ये एक ऐसा कीवर्ड है जो पेरेंट या बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। What is super, Tanu? Super is a, or calling the constructor of the yes, it is used to call constructor of parent or base. ओके ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, पहली वैल्यू क्या है? फुल नेम, और दूसरी वैल्यू क्या है? रोल नंबर। तो मैं यहाँ पे फुल नेम एंड रोल नंबर पास कर देता हूँ। That's it. मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, वी आर कॉलिंग हियर बेस क्लास कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे हम लोग जो बेस क्लास है उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग वैल्यू भर रहे हैं। That's it. ये वाला है। अब एरर कहाँ पे है? ठीक है, तो आपको ये थोड़ा मैं सीधा कर देता हूँ। पहला कंस्ट्रक्टर जो है ये, इसको सीधा कर देता हूँ। पहले फुल नेम होना चाहिए और बाद में ये होना चाहिए, ठीक है? ओके
तो अब इसको वैल्यू पास करेंगे, फुल नेम सुयोग, ठीक है, एंड रोल नंबर इज 123। इसे थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ, लाइन बाय लाइन देखो। और अब आपका देखो कि आउटपुट क्या आएगा। लुक इट हियर, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन भी आ गई और आपके जो टोटल मार्क्स है वो भी आ गए। सो व्हेन यू नीड टू सेट वैल्यू फॉर द पेरेंट्स और बेस क्लास फील्ड्स, देन आपको ये फील्ड्स तो लेनी ही है, आपके डिराइव्ड क्लास में ही लेने हैं, आपको डिराइव्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में ही लेने हैं आर्गुमेंट, और वो पास करनी है कौन से। देखो अगर मैं यहाँ पे सुपर पे क्लिक कर देता हूँ ना, कंट्रोल क्लिक, तो वो सीधा वहां पे चला जाएगा यहाँ पे, तो वो वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेट हो जाएगी। तो सुपर इज अ कीवर्ड विच इज यूज टू कॉल बेस क्लास कंस्ट्रक्टर, ऐसे। तो आप सबको ये प्रैक्टिस करनी है जो नेक्स्ट सेशन है उसके पहले। मे बी बिट थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बट मैं आपको यही पॉलिश करूंगा, ठीक है। हम लोगों ने सीखा है सिंपल इनहेरिटेंस, जिसमें एक ही बेस क्लास होता है और एक ही चाइल्ड क्लास होता है, एक ही डिराइव्ड क्लास होता है, सिंपल। और अगर हमें बेस क्लास के फील्ड में वैल्यू भरनी है तो हम लोग उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे हमारे जो चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर। लेकिन बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए हम डायरेक्टली ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, स्टूडेंट है ना, तो आपको ऐसे स्टूडेंट लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बस सुपर लिखना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सुपर लिखना है।